તો મોટા સમાચાર અમદાવાદથી જેમાં કોંગ્રેસ જાહેર કરશે મેનિફેસ્ટો 2022 કોંગ્રેસ દ્વારા જે મેનિફેસ્ટોની જાહેરાત કરવામાં આવશે ગુજરાત કોંગ્રેસ જાહેર કર્યો મેનિફેસ્ટો 2022 જેમાં કોંગ્રેસે જન ઘોષણા પત્ર 2022 જાહેર કર્યું છે। જી હા, કોંગ્રેસની વાત કરીએ તો કોંગ્રેસ દ્વારા જન ઘોષણા પત્ર 2022 જાહેર કરાશે। કોંગ્રેસના વચનો સંઘ પરિવર્તન ઉત્સવ ઉજવાશે। અશોક ગેહલોત સહિત નેતાઓ મેનિફેસ્ટો જાહેર કરશે ત્યારે કોંગ્રેસના ચૂંટણી ઢંઢેરામાં રાહુલના 8 વચન હશે। કેન્દ્ર સ્થાને ખેડૂતોનું દેવું માફ કરવાનો વાયદો હશે। 500 રૂપિયામાં ગેસની બોટલ આપવાની પણ વાત હશે। 300 યુનિટ વીજળી ફ્રીના પણ વાયદાઓ હશે। જૂની પેન્શન યોજના કોન્ટ્રાક્ટર પ્રથા નાબૂદી મુખ્ય મુદ્દા રહેશે। તો જનતા મેડિકલ સ્ટોર્સની ચેઇન ઊભી કરવાની પણ વાત સામે આવી છે। કોરોનામાં મૃત્યુ પામેલા કોરોના વોરિયર્સના પરિવારમાંથી એકને સરકારી નોકરીમાં અગ્રિમતા, માછીમારોનું 3 લાખ સુધીનું દેવું માફ। આ જન ઘોષણા પત્ર 2022 બનશે જનતાની સરકારથી। જ્યારે વિધાનસભા ચૂંટણી માટે આજે કોંગ્રેસ મેનિફેસ્ટો જાહેર કરશે। અશોક ગેહલોત ગુજરાત કોંગ્રેસના મેનિફેસ્ટોની જાહેરાત કરશે। 5000 ગામ 5000 કાર્યકર્તાઓએ 65000 નાગરિકોને મળી મેનિફેસ્ટો માટે મંતવ્યો મેળવ્યા છે। કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે મળેલા મંતવ્યોની લોકશાહી દિવાલ બનાવી છે અને આજે તેની જાહેરાત કરવામાં આવશે। તો લાખો લોકોના મંતવ્ય બાદ આ મેનિફેસ્ટો જાહેર કરાશે। મેનિફેસ્ટો 2022 કે જેનું હાલ તેની જાહેરાત કરવામાં આવશે। સીધા જે આપ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો કોંગ્રેસથી અને ગુજરાતની જનતાથી ખૂબ લગાવ છે। ગુજરાતની કોંગ્રેસ અને ગુજરાતની જનતાને એક પરિવાર સમજે છે, સુખ દુઃખના ભાગીદાર। જ્યારે જ્યારે પણ કોંગ્રેસને ગુજરાતમાં જરૂર પડી અને જનતાને જરૂર પડી ત્યારે હર હંમેશ આપણી પડખે ઊભા રહેનાર રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી આપણા સૌના આદરણીય અને યશસ્વી કાર્ય કરીને સમગ્ર રાજસ્થાનને એક મોડેલ સ્ટેટ દેશમાં બનાવ્યું છે એવા અશોક ગેહલોત સાહેબ આપણી વચ્ચે ખૂબ સમય આપીને સતત આપણી સાથે રહેતા ડોક્ટર રઘુ શર્મા સાહેબ, આદરણીય મોહન પ્રકાશજી, માન્ય શક્તિસિંહજી, માન્ય ભરતભાઈ, માન્ય દીપકભાઈ, માન્ય અર્જુનભાઈ, માન્ય સિદ્ધાર્થભાઈ, માન્ય અમિતભાઈ, અમારા સૌના પ્રવક્તા આદરણીય પવન ખેડાજી, આલોક વર્માજી, અમારા સેક્રેટરી ઉષા નાયડુજી, વિરેન્દ્રસિંહજી, બી સંદીપજી, રામકિશન ઓઝાજી, અમીબેન યાજ્ઞિક, અમારા પ્રવક્તાઓ ભાઈ મનીષભાઈ, હેમાંગભાઈ, બેન્કર અમિત નાયક, અમારા વિધાનસભાના ઉપનેતા શૈલેષભાઈ, ઇન્દ્ર વિજયસિંહજી, પ્રભાબેન તાવિયાડ, ચંદ્રિકાબેન, ઘનશ્યામભાઈ, હિતેન્દ્રભાઈ, સ્ટેજ ઉપર સૌ બિરાજમાન કોંગ્રેસના મોવડી મંડળ, અમારા અન્ય રાજ્યોમાંથી આવેલા સિનિયર મંત્રીશ્રીઓ અને વહાલા પત્રકાર મિત્રો, આજે જનતાનો અવાજ, જનતાના પ્રશ્નો સાંભળીને એ પ્રશ્નોને જન ઘોષણાના રૂપમાં આજે આદરણીય અશોક ગેહલોત સાહેબની ઉપસ્થિતિમાં આ ચૂંટણી ઢંઢેરો ડિક્લેર કર્યો છે। એ જનતાનો અવાજ સાંભળ્યો છે અને ગુજરાતમાં ડિસેમ્બરમાં જ્યારે ચૂંટણીઓ યોજાઈ રહી છે ત્યારે કોંગ્રેસ 125 સીટો સાથે જનતાની સરકાર બનાવી રહી છે એ વાત કરવા માટેને સમગ્ર ગુજરાતના ખૂણે ખૂણે ફરીને લોકોને મળીને જુદા જુદા વર્ગોને મળીને જે કંઈ ભગીરથ કાર્ય આજે ઘોષણાપત્રનું કર્યું છે એ દીપકભાઈને એમની ટીમને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। આદરણીય અશોકજીના નેતૃત્વમાં ગુજરાતમાં આજે ચૂંટણી ઢંઢેરામાં ઉપસ્થિત તમામ મહેમાનોનું સ્વાગત કરું છું અને મુખ્ય મુદ્દાઓની જે કંઈ ચર્ચા ગુજરાતની પ્રજાએ અમારી સાથે કરી છે એ મુદ્દાઓને લઈ આગામી દિવસમાં કોંગ્રેસ પક્ષ અમારી રણનીતિ નક્કી કરીને ચૂંટણીના ચક્રવ્યૂહમાં આગળ વધીશું અને દિવસે દિવસે
કોંગ્રેસ પ્લસ થઈ રહી છે અને પહેલે દિવસથી અમે કહી રહ્યા છીએ કે ગુજરાતમાં 125 પ્લસ સાથે સરકાર બનાવી રહ્યા છીએ એ જ વાત કરી અને આગળની કાર્યવાહી કરવા માટે વિનંતી કરું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. વેલકમ. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ. હવે હું વિનંતી કરીશ રાજસ્થાનના યશસ્વી મુખ્યમંત્રી આપણા સૌના લોકલાડીલા નેતા જેમને સમગ્ર ભારતમાં એક વિશેષ મોડેલ આપ્યું છે રચનાઓનું, રચનાત્મક કામોનું, જેઓ ગાંધીવાદી નેતા તરીકે પ્રખ્યાત છે એવા માનनीय अशोक गहलोत जी. माननीय गहलोत साहब. हमारे अध्यक्ष जी रवि शर्मा जी और दीपक बाबरे जी जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग कमेटी चेयरमैन है, तमाम हमारे वरिष्ठ साथी बैठे हैं और पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ. आज ऐतिहासिक घड़ी है क्योंकि किसी पार्टी का मैनिफेस्टो जो है वो कमिटमेंट होता है पब्लिक के साथ. अगर आप ईमानदारी की बात तो कांग्रेस ने मेरा मैनिफेस्टो को महत्व दिया और मुझे याद है करीब 22 साल पहले सोनिया गांधी जी बनी थी अध्यक्ष कांग्रेस की, तभी नई शुरुआत हुई थी और वो शुरुआत थी मैनिफेस्टो को आप महत्व दें और कमिटमेंट रखें जनता के साथ चुनाव जीतने के बाद में भी. इसके मायने कि चुनाव जीतने के बाद सरकार बनती है तो अधिकांश बड़ी पार्टी मैनिफेस्टो भूल जाती थी, पब्लिक भूल जाती है और सरकार में भी इसका महत्व नहीं रहता. ये आपने भी अनुभव किया होगा जमाने में. हमने एक नई शुरुआत करी राजस्थान के अंदर. वो शुरुआत थी कि चुनाव जीतने के बाद में पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर मैनिफेस्टो रखा गया और उसको पास किया गया. ये पहली शुरुआत थी 98 के अंदर पेश किया गया. तो स्वतः ही सरकारी एजेंडा में आ गया, सरकारी डॉक्यूमेंट बन गया. तमाम कलेक्टर, तमाम सेक्रेटरी सबको कॉपी उपलब्ध हुई. एक्स्ट्रा छपानी पड़ी तो हमने छपाई, पर पूरे राजस्थान में कलेक्टर तक में कॉपी कराई. ये हमारा मैनिफेस्टो जो था चुनाव से पहले वादे किए थे, हम चाहेंगे कि इसके आधार पर वादे निभाएं हम लोग और उसी ढंग से आपको भी फैसले करने हैं तमाम अधिकारियों को. एक घोषणा पत्र का जन घोषणा पत्र भी राहुल गांधी जी ने बताया. राहुल गांधी जी ने कहा आप जनता को पूछ के मैनिफेस्टो बनाओ. उसके पहले कमेटी बनती थी नेताओं की और वो अपने हिसाब से नाप तोल करके मैनिफेस्टो बनते थे. ये जो राहुल गांधी जी की सोच थी इसमें हमें जनता को पूछ करके उनकी भावना क्या वो परिलक्षित होनी चाहिए मैनिफेस्टो के अंदर. उसके बाद में आप देख रहे हो कि जन घोषणा पत्र जारी होने लगते हैं. सिस्टम वही रहा है. चुनाव जीतने के बाद में मैंने जब मैं मुख्यमंत्री दूसरी बार बना तब भी और तीसरी बार तब भी, हम तीनों बार हमने उसको कैबिनेट में रखा है, पहली कैबिनेट में. और आप देखेंगे कि गुजरात के अंदर आप लोग प्रदेशवासियों को मैं आह्वान करना चाहूँगा. मैनिफेस्टो बहुत शानदार आ रहा है, प्रतिबद्धता के साथ आ रहा है, समर्पित है जनता के लिए. और जो राहुल गांधी की भावना के साथ में जो बातें जो ज़्यादा चल रही है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, या जो देश में जो माहौल है तनाव का, हिंसा का, वो समाप्त हो, प्यार मोहब्बत और भाईचारे लोग रहें, ये मुद्दा हो, या शिक्षा हो, या स्वास्थ्य सेवाएं हो, या किसान मुद्दे हों, तमाम मुद्दों का समावेश किया गया है. और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि सरकार बनने के बाद पहले कैबिनेट के अंदर यही मैनिफेस्टो जो है वो सरकारी डॉक्यूमेंट बन जाएगा. मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ. इस रूप में हम लोगों ने एक नई शुरुआत करी और जो कमिटमेंट किए गए हैं, पहले चार्जशीट जारी की गई बीजेपी सरकार के खिलाफ में, उसका बड़ा महत्व है. चार्जशीट जारी करना कांग्रेस के लिए एक मैसेज है पब्लिक को. इनके खिलाफ क्या क्या चार्ज लगते हैं, चार्ज तो बहुत सारे होते हैं
और वो जनता को दिख भी रहे हैं। आज सत्ता विरोधी जो लहर चल रही है गुजरात के अंदर, क्यों चल रही है? इसलिए लोगों ने देख लिया 27 साल के शासन को, और विशेष रूप से 5 साल के शासन को। कोरोना में लोग मर गए, बचा सकती थी सरकार। आज गुजरात सक्षम राज्य है देश का। आजादी चुनाव जीतने के बाद सरकार बनती है तो अधिकांश पॉलिटिकल पार्टियां मैनिफेस्टो भूल जाती है, पब्लिक भूल जाती है, और सरकार में भी उसका महत्व नहीं रहता। ये आपने भी अनुभव किया होगा उस जमाने के अंदर। हमने एक नई शुरुआत करी राजस्थान के अंदर। वो शुरुआत थी कि चुनाव जीतने के बाद में पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर मैनिफेस्टो को रखा गया और उसको पास किया गया। ये पहली शुरुआत थी 98 के अंदर देश के अंदर। तो 27 सरकारी एजेंडा में आ गए, सरकारी डॉक्यूमेंट बन गया। तमाम कलेक्टर, तमाम सेक्रेटरी, सबको कॉपी उपलब्ध हुई। एक्स्ट्रा छपानी पड़ी, हमने छपाई, पर पूरे राजस्थान में कलेक्टर तक में कॉपी गई कि ये हमारा मैनिफेस्टो जो था चुनाव जीतने के पहले वादे किए थे, हम चाहेंगे कि इसके आधार पर वादे निभाएं हम लोग, और उसी ढंग से आपको भी फैसले करने हैं तमाम अधिकारियों को। एक घोषणा पत्र का जन घोषणा पत्र भी राहुल गांधी जी के वक्त आया है। राहुल गांधी जी ने कहा आप जनता को पूछ के मैनिफेस्टो बनाओ। उसके पहले कमेटी बनती थी नेताओं की, और वो अपने हिसाब से नाप तोल करके मैनिफेस्टो बनते थे। ये जो राहुल गांधी जी की सोच थी, इसमें हमें जनता को पूछ करके उनकी भावना क्या वो परिलक्षित होनी चाहिए मैनिफेस्टो के अंदर। उसके बाद में आप देख रहे हो कि जन घोषणा पत्र जारी होने लग गए। सिस्टम वही रहा है। चुनाव जीतने के बाद में मैंने, जब मैं मुख्यमंत्री दूसरी बार बना तब भी, और तीसरी बार तब भी, हम तीनों बार हमने उसको कैबिनेट में रखा है, पहली कैबिनेट के अंदर रखा है। और आप देखेंगे कि गुजरात के अंदर आप लोग प्रदेशवासियों को मैं आह्वान करना चाहूंगा, मैनिफेस्टो बहुत शानदार आ रहा है, प्रतिबद्धता के साथ आ रहा है, समर्पित है जनता के लिए। और जो राहुल गांधी की भावना के साथ में जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, या जो देश में जो माहौल है तनाव का, हिंसा का, वो समाप्त हो, प्यार मोहब्बत और भाईचारे से हम लोग रहें, ये मुद्दा हो, या शिक्षा हो, या स्वास्थ्य सेवाएं हो, या किसानों के मुद्दे हों, तमाम मुद्दों का समावेश किया गया है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि सरकार बनने के बाद में पहले कैबिनेट के अंदर यही मैनिफेस्टो जो है वो सरकारी डॉक्यूमेंट बन जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इस रूप में हम लोगों ने एक नई शुरुआत कर ली, और जो कमिटमेंट किए गए हैं, पहले चार्जशीट जारी की गई बीजेपी सरकार के खिलाफ में, उसका बड़ा महत्व है। चार्जशीट जारी करना कांग्रेस के लिए एक मैसेज है पब्लिक को, इनके खिलाफ क्या क्या चार्ज लगते हैं। चार्ज तो बहुत सारे होते हैं और वो जनता को दिख भी रहे हैं। आज सत्ता विरोधी जो लहर चल रही है गुजरात के अंदर, क्यों चल रही है? इसलिए लोगों ने देख लिया 27 साल के शासन को, और विशेष रूप से 5 साल के शासन को। कोरोना में लोग मर गए, बचा सकती थी सरकार। आज गुजरात सक्षम राज्य है देश का, आजादी के पहले से ही। क्या कारण है कि इतना कमजोर हो गया? एक महामारी विश्व स्तर पर आ गई। राजस्थान जैसा स्टेट मुकाबला कर सकता है, नंबर 1 बन सकता है देश के अंदर। बीरवाड़ा मॉडल हमारा राजस्थान में नहीं बल्कि दुनिया में पहुंच सकता है। उसका आधार बना कि सबने मुकाबला किया कोरोना का। तो क्या कारण है? यहाँ तो संपन्न साधन सब मामले हैं, अस्पताल है, भीड़ लगी रही अस्पताल के बाहर, और वहां पे दीप चढ़ती गई। क्या नहीं होगा? शराब से लोग मर गए, या शराबबंदी है, नकली शराब बना पीने पड़ता उनको। और मौलवी के अंदर क्या हुआ मालूम आपको? मैंने तो सुना बाद में 12 लाख रुपये खर्च हुए। आप कल्पना कीजिए, 135 लोगों की जान चली गई। और मैं आज फिर कहना चाहूँगा आप सबके माध्यम से सरकार को, और आपको भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप मौलवी की घटना को गंभीरता से समझें कि एक हाईकोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज से कमीशन बैठाने की तकलीफ क्या सरकार को? वो क्या करेगी? वो कम से कम बयान लेगी, तय तक जाएगी किस कारण से ये
बीच गिराए, गलती किसकी रही, किसने कोताही बरती, वो तो करेगा और क्या करेगा। और सजा मिलेगी लोगों को तो आगे कभी भय रखेंगे कि पता नहीं ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। यही तो गवर्नेंस होती है। गवर्नेंस यहाँ पर बिल्कुल जीरो है। पूरी कैबिनेट बदल गई, मुख्यमंत्री सहित, ये भी एक उदाहरण है क्यों बदल गई। ये तमाम बातें आपके सामने हैं। सरकार जो है ये मैनिफेस्टो के माध्यम से न्याय कमीशन बनाने जा रही है, जिससे कि वो मॉनिटरिंग कर सके। मैनिफेस्टो की मॉनिटरिंग, जन घोषणा पत्र की मॉनिटरिंग सरकार बनने के बाद में कैबिनेट में तो हुआ ही होगा। वो उसके बाद में सरकारी अधिकारी जो है चीफ सेक्रेटरी लगाकर कलेक्टर तक, सेक्रेटरी तक, वो कौन कौन से काम मैनिफेस्टो में लिखे हुए हैं, कहाँ तक आगे बढ़े हैं, कौन से फैसले होने बाकी है, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए अलग से आपको न्याय कमीशन बनाया जाएगा। ये इस प्रकार की प्रोविजन किए गए मैनिफेस्टो के अंदर। इसलिए आपको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी आपको मैनिफेस्टो के बारे में बताएंगे। जो वचन दिए गए राहुल गांधी जी द्वारा, उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहता, और वचन कोई एक्स्ट्रा हुए हैं, बढ़ाए गए हैं, तो वो आपको बाबरिया जी बताएंगे। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि मैनिफेस्टो का सरकार के डॉक्यूमेंट बनाना और उसको जिस रूप में प्रस्तुत करना, बहुत मेहनत की गई है बाबरिया जी की पूरी टीम द्वारा। 6 लाख लोगों तक पहुंचा गया है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो आप सोच सकते हो 6 लाख लोगों तक कैसे पहुंचे होंगे, वो बताएंगे बाबरिया जी आपको। परंतु एक प्रयास किया गया, जनता का माइंड क्या है, वो क्या सोचती होंगे, सुझाव क्या है, उसके आधार पर मैनिफेस्टो तैयार किया गया है, जो अभी आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। और ये जो अभी मेरे को एक डेलीगेशन मिला, ये भी पहली बार हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का स्टेडियम बना हुआ था यार गुजरात के अंदर। आप एक नामांकन, हमारी परंपरा रही है प्राचीन काल से ही, हमारी अलग परंपरा देश की है, हमें गर्व है इस देश पर। मान परंपराएं, मान संस्कृति, मान संस्कार है देशवासियों में। उस देश के अंदर एक बार कोई शिलान्यास हो जाता है, शिलान्यास, तो वापस शिलान्यास नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी को गुमराह किया गया, रिफाइनरी का हमने शिलान्यास कर दिया था राजस्थान के अंदर। नीचे विजय मौर्य आ गए थे केंद्रीय मंत्री, सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन थी एनपी, वो आ गई थी आपकी यूपी गवर्नमेंट की। इतना बड़ा प्रोजेक्ट का शिलान्यास हो गया था, सरकार बदल गई और उसके बाद में रोक दिया गया। 5 साल बाद वापस शुरू करने लगे, तो प्रधानमंत्री जी को बुलाया गया वापस। तो मैंने ऑब्जेक्शन किया, ऐतराज किया कि एक बार शिलान्यास हो गए हैं, मंत्र पढ़े जा चुके हैं, दोबारा मंत्र कैसे पढ़े जाएंगे बताओ। कैसे पढ़े जाएंगे। तो प्रधानमंत्री पीएम ने क्या किया, नए कार्ड छपाए होंगे मेरे ख्याल से, और लिखा प्रधानमंत्री जी कार्य शुभारंभ के अवसर आ रहे हैं। मतलब 5 साल से कार्य शुभारंभ नहीं किया, शिलान्यास हो गया हमारे वक्त में, अब कार्य प्रारंभ के उपलक्ष्य में आ रहे हैं, और वो आए वहां पर। अब बताइए आप, सरदार पटेल के नाम का स्टेडियम बन गया। स्टेडियम बनने के बाद में आप कैसे वापस उसका नाम बदल सकते हो नरेंद्र मोदी जी के नाम का। अरे नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, इससे बड़ा स्टेडियम बन सकता था। अगर प्रधानमंत्री के नाम का स्टेडियम बना, हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। आप सरदार पटेल के स्टेडियम रखते, जरूर थोड़ी वो गुजरात नहीं बने। प्रधानमंत्री के नाम का स्टेडियम गुजरात के अलावा भी कहीं बन सकता था नरेंद्र मोदी के नाम का, और उससे बड़ा होता है, इससे कोई ऐतराज नहीं होता। एक नामांकन होने के बाद में कैसे आप बदल सकते हो। अभी सुबह सुबह मेरे पास मिलने आगे लोग, तमाम डेलीगेशन, और बड़े गुस्से में थे वो। हमने अभियान चला रखा है गुजरात के अंदर कि ये नामांकन बदला गया है, वापस ठीक किया जाए। ये कहने के लिए आए मुझे गांव के लोग, उनके गांव के लोग भी थे, सरदार पटेल गांव के लोग थे। तो ये जो इस प्रकार की जो आपके यहाँ परंपरा डाल रहे हैं बीजेपी वाले, वो मैं इसको किसी रूप में उचित नहीं मानता हूँ। बाकी हमारे जो मैनिफेस्टो है वो भी आप सुनेंगे, उनके मुख्य मुख्य पॉइंट आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। मैं समझता हूँ उस पर आप जितना हमें सहयोग करेंगे
आर्टिकल लिखना हो, न्यूज बनानी हो, आपके ऊपर रहेगा। मीडिया का चौथा स्तंभ है, मैं तो उसको बहुत महत्व देता हूँ जिंदगी के अंदर बचपन से ही। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैनिफेस्टो का जो सेंटिटी है, सेंटिटी रखने वाला काम हमारा है, जो पहले नहीं रखी जाती थी। आज सेंटिटी के साथ हम बात करना चाहते हैं आपसे कि गुजरात के फ्यूचर को देखते हुए जो आजादी की